Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are doing a part of Animal Kingdom from NCERT, a very high linked chapter for NEET. In this video, we are starting a new and extremely important part of the chapter, that is the subphylum vertebrate. This portion is directly asked in NEET, especially in the form of classification based MCQs, matching, right, and one line of facts. So make sure you watch till the end because I'll also highlight NCERT traps and keywords. Let's start. Now, for this, first of all, we know that we are talking about phylum named as chordate, right? Chordate. उसका सब फाइलम है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, and that is उसका सब फाइलम है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, that is vertebrates. Okay, yes. Remember that you have to just remember its general characters of the subphylum vertebrates. So now let's discuss the common characters of the vertebrates. What are the common characters of the vertebrate? First is the presence of notochord, because as it is a chordate, so there needs to be a presence of notochord. In vertebrates, notochord is present only in the embryonic stage. सिर्फ कब देखने को मिलती है notochord? embryonic stage में हम लोगों को सिर्फ ये देखने को मिलती है, right? Later it is replaced by the vertebral column. That is why we call it as a vertebrates. Okay, adult vertebrates do not have a notochord. Remember that. Okay, then second thing we will be talking about is dorsal hollow nerve cord. Please comment it down कि नॉन कॉर्डेट्स में क्या होता होगा. नॉन कॉर्डेट्स में क्या होता होगा. इसका मतलब क्या है कि दे आर हैविंग अ वेल डेवलप्ड ब्रेन एंड ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम कॉल्ड स्कल. Third thing that will be mentioned over here will be that they will be having endoskeleton. Endoskeleton is made up of bone or cartilage, provides better support and movement, जो कि हम लोग आगे इसकी पढ़ेंगे आगे. We'll be talking about its classes, that is its super classes, that is chondrichthyes and classes पढ़ेंगे chondrichthyes and osteichthyes, जिसमें हम लोग will be starting about bony और cartilage endoskeleton that provides better support for movement. Then it comes vertebrates के बारे में. Then we talk about circulatory system. किसके बारे में? Circulatory system के बारे में we are going to study. Circulatory system is basically closed. Circulatory system is seen. Heart is ventral and heart में भी 2, 3 और 4 chambered as we see. Fishes में 2 chambered होता है, amphibians में 3 chambered होता है ना, और mammals में 4 होता है, reptiles में भी 3 होता है, but there is an exception of there is a exception of I guess there is one exception in reptiles, right? Which just let's check it out. Crocodile का ही था. It has 4 chambers, but we'll be starting it further also. Now next thing we're going to study in vertebrate will be about the paired appendages, कि उनके appendages कैसे हैं, paired fins और limbs present जो कि locomotion में help करते हैं. Then last thing we're going to study कि respiration कैसे कराई जाती है by gills or by lungs depending upon the class. So now let's study the subphylum vertebrata in further divided as follows. तो vertebrate को divide किया गया, division किया गया इसका 2 parts में, that is agnatha and gnathostoma. agnatha वाले में jaws नहीं होते और gnathostoma bears jaws. उसके बाद आ जाती है सीधा class, because देखो तुमने सीरीज पढ़ी थी कि दिस वॉज अ सीरीज फर्स्ट चैप्टर में जो पढ़ी है, किंगडम, फाइलम और डिविजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस एंड स्पीशीज. तो किंगडम के बाद फाइलम आता है. किंगडम एनिमेलिया पढ़ रहे हैं हम लोग, फाइलम कॉर्डेट पढ़ रहे हैं, उसका सब फाइलम पढ़ रहे हैं. यहाँ पे आएगा सब फाइलम वर्टेब्रेटा. तो अब तो क्लास ही आएगी. यस, क्लास ही आएगी. तो क्लास से पहले इन्होंने यहाँ अग्नाथा में जो कि जॉज लैक करते हैं उसमें क्लास दी है साइक्लोस्टोमा. ग्नाथोस्टोमा जो होते हैं उसमें जॉज होते हैं, उनकी सुपर क्लासेस है पाइसिस और टेट्रापोडा. पाइसिस बेयर फिन्स एंड टेट्रापोडा बेयर लिम्स. तो अब इधर क्लास आएगी, सुपर क्लास वालों की क्लास आएगी कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्टिक्थीज, और टेट्रापोडा जो कि लिम्स बेयर कर रहा है उसकी क्लास आएगी एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स, मैमल्स. तो अगर आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एव्स की सुपर क्लास बताओ, तो एव्स की सुपर क्लास हो जाएगी टेट्रापोडा जो कि लिम्स बेयर करती है, राइट? यस. सो सबफाइलम वर्टेब्रेटा इज डिवाइडेड इनटू बेसिकली द 5 मेन क्लासेस हम लोग बोल सकते हैं. वो 5 क्लासेस कौन सी हैं? साइक्लोस्टोमा है आपकी, देन 5 तो नहीं है, ज़्यादा ही है, राइट? कितनी क्लासेस है? 1 2 3 4 5 6 7 क्लासेस है, आई एम सॉरी. तो साइक्लोस्टोमा, कॉन्ट्रिक्थीज, ऑस्टिक्थीज, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स एंड मैमल्स. तो 7 क्लासेस में इट्स बीन डिवाइडेड. फॉर टुडेज वीडियो विल बी कवरिंग all matlab will cover maximum things. Okay, yes. Now let's begin with cyclostoma. I'll be at the end I'll be making you mark what are the key characters, then you can easily write it in your school examination as well. Okay, let's start with cyclostoma. Okay,
येस, ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमा आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन फिशेस, मतलब जितने भी हैं वो सब क्या हैं, एक्टोपैरासाइट्स है. ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ दिस क्लास आर एक्टोपैरासाइट्स. देन दे हैव इलोंगेटेड बॉडी बियरिंग 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन. कहाँ से होती है, गिल स्लिट से होती है, और कितने प्रेजेंट है, 6 to 15 पेयर्स प्रेजेंट है. साइक्लोस्टोम्स हैव अ सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉज बिकॉज इट वाज द डिवीजन ऑफ अग्नाथा, जो कि दैट लैक्स जॉ है ना, लैक्स जॉ. तो इसमें क्या होता है कि इनमें क्या होता है, जॉज नहीं होते, एज गिवन एज मेंशन्ड हियर, कि इनके पास होता है सकिंग और सर्कुलर माउथ. तो ये है आपका जॉलेस वर्टिब्रा, दैट इज टेरोमाइजन, और इसका जो है वो सकिंग और सर्कुलर माउथ है, और देखो जॉ नहीं है इसका, राइट. दे आर नॉट ट्रू फिशेस गाइज, ओके. देयर बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स, ओके. क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजेनियस. तो इसका क्रेनियल और वर्टिब्रल कॉलम कैसा रहता है, कार्टिलेजेनियस होता है, कार्टिलेज से बना हुआ होता है, प्लाइगेबल मटेरियल होगा, राइट. सर्कुलेशन क्लोज टाइप है, वर्टिब्रेट है तो सर्कुलेशन क्लोज टाइप होगा. साइक्लोस्टोम आर मेराइन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर. वैसे तो दे आर मेराइन बट स्पॉनिंग के लिए कहाँ जाते हैं, फ्रेश वाटर में जाते हैं. ओके, सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू मार्क दिस कि इन योर बुक्स दैट साइक्लोस्टोम वैसे तो मेराइन्स होते हैं बट स्पॉनिंग के लिए कहाँ जाते हैं. हाँ, तो स्पॉनिंग क्या होती है स्टूडेंट, स्पॉनिंग इज अ प्रोसेस वेयर एक्वेटिक एनिमल्स दे रिलीज देयर एग्स एंड स्पर्म इनटू वाटर फॉर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. ठीक है, ओके. आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई, मतलब कहने का कि लाइफ में एक ही बार स्पॉन कर सकते हैं, क्योंकि स्पॉनिंग के जस्ट बाद वो मर जाएंगे. देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू ओशन. ओके, मेटामॉर्फोसिस करने के बाद उनका लार्वा ओशन में आ जाता है. तो मेटामॉर्फोसिस तो पता ही होगा सबको, इट इज़ अ प्रोसेस found the transformation where animal body structure drastically changes from its immature form to adult stage. तो वो metamorphosis करने के बाद oceans में return हो जाते हैं. इसके examples important होंगे. Let's talk about इसके examples क्या हैं. Examples हैं इसके टेरोमाइजन, लैम्परे बोला जाता है जिसको, एंड माइक्सिन एज अ हैगफिश. ओके, क्लियर, पक्का. तो इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं स्टूडेंट्स, आई एम मार्किंग. इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, आई एम मार्किंग देम. ओके, इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स, एक तो की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये होते हैं जॉलेस वर्टिब्रेट्स. ओके, एक की कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो गया जॉलेस वर्टिब्रेट्स. देन बॉडी सॉरी माउथ इज देयर, दे हैव माउथ ऑफ सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉज है. ठीक है, स्केल्स एब्सेंट हैं इसमें. देन एंडोस्केलेटन कैसा है इसका, कार्टिलेजेनियस है, राइट. एंडोस्केलेटन कार्टिलेजेनियस है. दे आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन फिशेस, सम फिशेस बोला है. एंड रेस्पिरेशन कैसे हो रही है, गिल से हो रही है रेस्पिरेशन, राइट. यस, एक एक्स्ट्रा चीज़ लिख लो, एक्स्ट्रास में लिख लो कि इनका जो हार्ट होता है ना स्टूडेंट्स, देयर हार्ट इज ऑफ 2 चेम्बर्ड, हार्ट इज ऑफ 2 चेम्बर्ड. ठीक है, 2 चेम्बर्ड हार्ट. क्लियर. देन एग्जाम्पल्स में हमने देख लिया टेरोमाइजन लैम्फरे, टेरोमाइजन लैम्फरे हो गया, और माइक्सिन हैगफिश दे दिया, राइट. एक्चुअली साइक्लोस्टोमास जो होते हैं, ये भी एक एक्स्ट्राज है. साइक्लोस्टोमास जो होते हैं वो होते हैं लिविंग fossils होते हैं साइक्लोस्टोमा, राइट. साइक्लोस्टोमास आर लिविंग fossils. So I hope cyclostoma is clear to everyone. Yes. Now let's begin with chondrichthyes. They are marine animals with the streamlined body and they have cartilaginous endoskeletons. Chondrocytes पढ़ा होगा तुमने structural organization in animals में, because अभी तो रिविजन चल रहा है, तो you guys have started, or the students who haven't started will be starting about chondrocyte, osteocytes in your specialized cells इन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर. उसमें पढ़ोगे कि कॉन्ड्रोसाइट्स का मतलब ही कार्टिलेजिनियस सेल्स होती है. तो दे आर मेराइन एनिमल विद स्ट्रीमलाइन बॉडी, कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन. एग्जांपल्स ऑफ कार्टिलेजिनियस फिशेस है स्कॉलियोडन, दैट इज योर डॉग फिश बोलते हैं, और प्रिस्टिस इज सॉफिश. ये दोनों डायग्राम्स हैं, स्कॉलियोडन का डायग्राम है और ये प्रिस्टिस का डायग्राम है. ओके, याद रखना. माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली. ओके, नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ. गिल स्लिट्स आर सेपरेटेड एंड विदाउट ओपोक्यूलम, गिल कवर नहीं होता, राइट. गिल स्लिट सेपरेट है. स्किन इज टफ कंटेनिंग प्लेकॉइड सेल्स. अब ये कॉन्ड्रोसाइट्स और ऑस्टियोसाइट्स में कुछ डिफरेंसेस आएंगे, एक बार दोनों को पढ़ लें फिर मार्क भी करेंगे. कि इनकी स्किन जो होती है टफ होती है, प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं. टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स विद बैकवर्डली डायरेक्टेड. तो जैसे कि माउथ है तो इनके टीथ जो होंगे ना वो बैकवर्डली डायरेक्टेड होंगे, राइट. देयर जॉज आर वेरी पावरफुल, इनके जॉज बहुत पावरफुल होते हैं. अब ये जॉ लेस तो नहीं है, जॉ तो है इनमें क्योंकि ग्नाथास्टोमा का डिवीजन है. Gnathostoma, gnatha नहीं gnatha. These animals are predaceous. Due to the absence of air bladders, they have to swim constantly to avoid sinking. Air bladder नहीं होता ना बच्चों इनमें, तो क्या होता है जब एयर ब्लैडर नहीं है तो ये कहीं सिंक ना हो जाए, इसलिए इनको कंटिन्यूअसली आपका फ्लोट करना रहता है. 2 चेम्बर्ड हार्ट है, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल. दे हैव सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, एग्जाम्पल टॉर्पीडो. सम पोजेसेस पॉइजन स्टिंग, एग्जाम्पल ट्राइगन. दे आर कोल्ड ब्लडेड. क्यों? क्योंकि 2 चेम्बर्ड हार्ट है तो मिक्सचर ऑफ ब्लड हो जाता होगा, राइट. तो पोइकिलोथर्म्स है, दे आर नॉट एबल टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर. Sexes are separate, that is they are not hermaphrodite. In male, pelvic fin bears class spurs. Okay, they have internal fertilization. Internal fertilization होता है इनमें. Many of them are viviparous. क्या होते हैं? Viviparous होते हैं. Examples are Scoliodon dogfish, Pristis sawfish, Carcharodon is white great shark, and Trigon is a stingray.
तो लेट्स मार्क इट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इज दैट कि इसका एंडोस्केलेटन कैसा होता है, कार्टिलेजेनियस एंडोस्केलेटन होता है। बॉडी किससे कवर्ड है, बॉडी कवर्ड है प्लेकॉइड स्केल्स से कवर्ड है ना। माउथ कैसा है, माउथ कैसा है, माउथ है वेंट्रल है, राइट। ओपोक्यूलम क्या है, विदाउट यानी एब्सेंस ऑफ ओपोक्यूलम है, राइट। गिल्स जो हैं वो यहाँ पे मार्क कर लो, या तो एक और चीज़ एक्स्ट्राज में दे रही थी कि जो गिल्स, आई एम सॉरी, जो गिल्स हैं वो 5 to 7 पेयर्स में प्रेजेंट होंगे। गिवन नहीं है बट इट्स ओके, फॉर योर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यू कैन राइट 5 to 7 पेयर्स। अब इसमें क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर है, तो दे हैव टू कंटिन्यूअसली float, right? They have to continuously swim to constantly avoid sinking. Then you have then you have fertilization. इनका कैसा होता है, fertilization होता है internal होता है। many of them are viviparous। कैसे हैं, बहुत सारे viviparous हैं, कैसे हैं, बहुत सारे viviparous है, राइट। एग्जाम्पल की बात करें तो स्कॉलियोडन डॉगफिश, प्रिस्टिस सॉफिश, कैनोडॉन ग्रेट वाइट शार्क और ट्राइगन स्टिंगरे, ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लिकॉइड सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड, ये जो यहाँ पे प्लिकॉइड सेल्स प्रेजेंट है इसको हम लोग एक और नाम देते हैं, वो नाम है डर्मल डेंटिकल्स। प्लिकॉइड सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज डर्मल डेंटिकल्स। ओके, क्लियर एवरीबॉडी? यस। Now let's start with the next class, that is osteocytes. Osteocytes similarly अगर आप लोग structural organization में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि osteocytes is related to bones के cells, right? Bony cells, okay? Now it includes both marine and fresh water। पिछले में सिर्फ marine था, marine water fishes with bony endoskeleton, और पिछले में कौन सा skeleton था, cartilaginous। Their body is streamlined, mouth is mostly terminal, ठीक है। साथ साथ बता रही हूँ chondrichthyes में mouth ventral था। अब देखो इसके examples है hippocampus, that is seahorse, and ये catla है, catla fish, okay? Hippocampus is your seahorse, okay? Now they have 4 pairs of gills which are covered by an operculum। कितने पेयर्स होते हैं, 4 पेयर्स, और पीछे कितने थे, 5 to 7, और यहाँ पे विद ओपोक्यूलम है, पीछे विदाउट ओपोक्यूलम थे। स्किन इज कवर्ड विद साइक्लॉइड और टीनॉइड सेल्स, और पीछे कौन से सेल्स है, प्लेकॉइड सेल्स थे। कौन से ब्लैडर इज प्रेजेंट विच रेगुलेट बुएंसी, और पिछले में एयर ब्लैडर वाज एब्सेंट, ओके, ताकि और उनको कंटिन्यूसली स्विम करना था ताकि सिंक ना हो जाए। ना हार्ट इज 2 चेम्बर्ड, वहाँ पे सेम था, कोल्ड ब्लैडेड है, क्योंकि हार्ट 2 चेम्बर्ड है, दोनों में तो कोल्ड ब्लैडेड ही होंगे बिकॉज मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाएगी। सेक्सेस आर सेपरेट, दैट इज दे आर नॉट हर्माफ्रोडाइट। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, और कॉन्ड्रोसाइट्स में क्या था, वहाँ क्या था, आई एम सॉरी, कॉन्ड्रोसाइट नहीं, कॉन्ड्रिक्थीज में क्या था कि फर्टिलाइजेशन वाज इंटरनल। दे आर मोस्टली ओविपारस, दे वर मोस्टली विविपारस, एंड देयर डेवलपमेंट इज ऑल्सो डायरेक्ट, ओके। एग्जाम्पल्स है मेराइन फिश के, एग्जाम्पल्स है एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स। फ्रेश वाटर के एग्जाम्पल्स है लेबिया रोहू, कैटला क्लैरियस मैगर, और एक्वेरियम के एग्जाम्पल्स है बीटा इज फाइटिंग फिश एंड टेरोफाइलम इज एंजल फिश, ओके। Now let's study their key characteristics, that their endoskeleton is bony, so they have a bony endoskeleton, okay. Body is covered with the cycloid और टीनॉइड cells, तो कैसे cells है, cycloid और टीनॉइड cells है। माउथ टर्मिनल है जो कि आपका कॉन्ड्रोसाइट्स में, सॉरी कॉन्ड्रिक्ट, आई एम रिपीटिंग कॉन्ड्रोसाइट्स, कॉन्ड्रिक्थीज में माउथ वाज वेंट्रल, राइट। ओपोक्यूलम यहाँ पे प्रेजेंट है, ओपोक्यूलम प्रेजेंट ऑन ईच साइड, ठीक है, एंड इन कॉन्ड्रिक्थीज इट वाज एब्सेंट। एंड गिल्स यहाँ पे कैसे हैं, गिल्स हैव द 4 पेयर्स ऑफ गिल्स, और वहाँ पे 5 to 7 मैंने आपको लिखवा दिया था। नाउ एयर ब्लैडर जो है इट इज प्रेजेंट हियर which helps in buoyancy. Fertilization is mostly external and they are mostly oviparous, Now जो important है आपके लिए वो है फ्रेश वाटर का लेबिया रोहू है, कैटला है, और मेराइन का एग्जाम्पल जो important है दैट इज हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स। मेल सी हॉर्स कैरीज एग्स इन ब्रूड पाउच, एक ब्रूड पाउच होता है ना, उसमें मेल सी हॉर्स एग्स कैरी करता है, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लास एम्फीबिया। एज द नेम इंडिकेट्स ग्रेट, एम्फी मतलब डुअल होता है, ग्रीक मतलब एम्फी मतलब डुअल होता है, डुअल का मतलब 2, बायोस का मतलब लाइफ, तो 2 जगह पे दे कैन एग्जिस्ट, दे कैन बी प्रेजेंट, जैसे कि लैंड में भी और वाटर में भी। एम्फीबियास कैन लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। अब हम लोग फिगर देख लें जरा, एग्जांपल्स ऑफ एम्फीबिया, तो ये है सैलमेंडर और ये है राना टिग्रिना जो कि फ्रॉग, जो कि हम लोग इसका पूरा हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका सर्कुलेटरी सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, एवरीथिंग विल गोइंग टू स्टडी इन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स चैप्टर, ओके। मोस्ट ऑफ देम हैज 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब, बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, टेल में भी प्रेजेंट इन सम, कुछ में प्रेजेंट होती है। द एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट, स्केल्स नहीं होते, आइज में आईलिड्स होती है, और टिम्पैनम इज प्रेजेंट, जैसे हमारा तो बिल्कुल कान प्रेजेंट होता है, इनका टिम्पैनम प्रेजेंट है, ईयर नहीं दिखेगा, मतलब एक सर्टन होल दिखेगा, तो वही आप समझ जाना कि इट इज द ईयर। Elementary canal, urinary and reproductive tracts open into a common चेंबर दैट इज कॉल्ड क्लोआका विच ओपन्स टू द एक्सटीरियर। तो एलिमेंट्री हो चाहे यूरिनरी हो चाहे रिप्रोडक्टिव, तीनों सिर्फ एक ही में ओपन होते हैं, क्लोआका। रेस्पिरेशन कैसे होते हैं, गिल्स, लंग्स एंड थ्रू स्किन। हार्ट इनका 3 चेंबर है, 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल, दिस इज ऑल्सो कोल्ड ब्लैडर, तो मिक्सिंग यहाँ पे भी हो जाती है, राइट। सेक्सेस आर सेपरेट, तो सेक्सेस यहाँ पे सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। ओविपारस है, मतलब दे आर एग लेइंग, एंड डेवलपमेंट इनका इनडायरेक्ट है, लार्वा से होता है, थ्रू लार्वा होता है, टाडपोल होता है ना इसका लार्वा, सबको पता है। एग्जाम्पल देखें तो बुफो टोड, राना फ्रॉग, हाइला इज ट्री फ्रॉग, सैलमेंडर, इक्थियोफस इज लिम्फलेस एम्फीबिया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ये, और बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ओके। या नाउ लेट्स स्टडी इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स की। एम्फीबियाज दे कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, ठीक है। स्किन इज मॉइस्ट, तो स्किन कैसी होती है इनकी, मॉइस्ट होती है, राइट। उसके बाद
स्किन इज मॉइस्ट, देन स्केल्स इसमें नहीं होते, विदाउट स्केल्स हैं, स्केल्स आर एब्सेंट। रेस्पिरेशन कैसे होती है, गिल्स से हो जाती है, गिल्स की रेस्पिरेशन और लंग्स एंड थ्रू स्किन होती है, राइट। गिल्स यूजुअली क्या होता है, जो लार्वा होता है ना वो गिल से करता है, लार्वा जो गिल से करेगा, और लंग्स और स्किन से, लंग्स और स्किन से कौन करेगा, लंग्स और स्किन से कौन करेगा, एक सेकंड दो मुझे ज़रा। लंग्स और स्किन से कौन करता है, लंग्स और स्किन से अडल्ट करते हैं, अडल्ट अडल्ट वाले लंग्स और स्किन से रेस्पायर करते हैं, ठीक है। अब हार्ट कितना चेंबर्ड है स्टूडेंट्स, इसका हार्ट कितना चेंबर्ड है, हार्ट इसका है 3 चेंबर्ड हार्ट है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, मोस्टली एक्सटर्नल होता है, एक्चुअली होता है कि लैंड पे है तो इंटरनल होगा, ठीक है, और अगर वाटर में है तो वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कराते हैं। ओवीपैरस है, एगलेइंग है, इसके जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है वो है राना फ्रॉग, ठीक है, बूफो टोड, सैलमेंडर है, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है इक्थियोफस, दैट इज लिम्फलेस एम्फीबिया, तो बच्चा कौन सा, हाइला ट्री फ्रॉग, वो भी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्लास, दैट इज रेप्टिलिया, रेप्टिलिया, ओके। रेप्टिलिया, प्लीज़ रीड एवरीथिंग जो कि अभी मैंने पढ़ा दिया, एंड जस्ट कॉमेंटेड डाउन कि जिसमें भी आप लोगों को प्रॉब्लम है तो मुझे बताना, आई बी एक्सप्लेनिंग योर दैट प्रॉब्लम इन कॉमेंट इफ इट इज़ पॉसिबल, और अदरवाइज आई बी प्रोवाइडिंग यू इन अनदर video when I'll be shooting for that video, no, for biology next video. Now let's talk what is a class for reptilia के बारे में। तो the class name refers to creeping और crawling mode of locomotion। तो creeping और crawling mode of locomotion जो होता है वो मेन आपका reptilia का characteristics है, क्योंकि रेप मीट क्या होता है, रेप्टम मतलब टू क्रीप और टू क्रॉल, ओके। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड दे बॉडीज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन का। एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स प्रेजेंट है, देखो रेप्टिलिया, ये कैमिलियन है, ये कैमिलियन है, ये क्रोकोडाइलस है, ये है किलोन टर्टल, एंड दिस इज नाजा, दैट इज द कोब्राज, ओके। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ओपनिंग्स, टिम्पैनम ही ईयर प्रेजेंट है, तो रेप्टिलिया और एम्फीबियस में टिम्पैनम होता है। लिम्स व्हेन प्रेजेंट दे आर ऑफ द 2 पेयर्स, हार्ट इज यूजुअली 3 चेंबर्ड बट 4 चेंबर्ड इन क्रोकोडाइल, वेरी इंपॉर्टेंट। रेप्टिलियाज आर पोइकिलोथर्म्स, क्योंकि 3 चेंबर्ड हार्ट है तो मिक्सिंग हो जाती है तो कोल्ड ब्लडेड ही रहेंगे। स्नेक्स एंड लिजर्ड्स शेड देयर स्केल्स आर स्किन कास्ट, तो ये अपनी स्केल्स को शेड कर देते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, हर्माफ्रोडाइट नहीं है, फर्टिलाइजेशन इनका इंटरनल है। आप ऐसे याद रखना कि कभी लैंड टेरेस्ट्रियल तो मैक्सिमम वो लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही शो करते हैं, तो आप ये टेरेस्ट्रियल है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो गया। ओवीपैरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, कोई लार्वा प्रेजेंट नहीं होता, रेप्टिलिया वालों का कोई लार्वा नहीं है, नो लार्वल स्टेज, नो लार्वल स्टेज इज प्रेजेंट, ओके स्टूडेंट्स, यस। Now, examples are Skeleton turtle, Testudo, tortoise, chameleon tree lizards, scalots, garden lizards, crocodilus, crocodile, alligator, hemidactylus is wall lizard, poisonous snake, nacha cobra, Bangerus, crate, vipera is viper, okay, yes. Now let's mark इसके इंपॉर्टेंट चीज़ें कि रेप्टाइल्स आर द फर्स्ट फुली टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स, जो फुली टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स है, फर्स्ट एनिमल्स है, वो कौन है, रेप्टिलियाज है। स्किन कैसी है इनकी, स्किन कैसी है इनकी, ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन है, राइट। रेस्पिरेशन यूजुअली ये लोग लंग से करते हैं, यहाँ पे मेंशन नहीं है तो लिख देते हैं, रेस्पिरेशन बेसिकली कैसे होता है, लंग्स से होता है, राइट। फर्टिलाइजेशन कैसा है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है इनका, और क्या है, मोस्टली ओवीपैरस है। देखो वैसे तो 3 चेंबर्ड हार्ट होता है, बट क्रोकोडाइल का 4 चेंबर्ड हार्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट कैसा है, 3 चेंबर्ड है, क्रोकोडाइल हैज 4 चेंबर्ड हार्ट, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स मार्क इंपॉर्टेंट थिंग्स। कैलॉट्स इज अ गार्डन लिजर्ड, नाजा इज अ कोबरा, जो कि पॉइजनस स्नेक में आता है कोबरा, है ना। क्रोकोडाइलस ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, राइट। एंड फेवरेट लाइन ये रहती है नीट वालों की, कि बताइए कि रेप्टाइल्स पोइकिलोथर्म्स हैं या फिर आपके कोल्ड ब्लडेड है, वार्म ब्लडेड है, होमियोथर्म्स है, बताइए। तो इट्स आंसर विल बी पोइकिलोथर्म्स, ये इंपॉर्टेंट है। For NEET, you have to learn scale, heart chambered, fertilization types, and do not skip its exam. You to read NCERT line by line, okay? Yes, everyone clear? Now let's come to the next class, that is the second last class, we called it as aves, okay? Aves पढ़ लेते हैं। तो the characteristic features of aves birds are the presence of feathers and most of them can fly, सिर्फ example कहीं तो exception रहता ही है, वो है आपका flightless bird का, जिसका नाम जाएगा ostrich, okay? अब दे पोजेसेस बीक तो होती है, क्योंकि चाहे वो किसी भी टाइप की बर्ड है, किसी को अलग अलग पर्पसेस के लिए दे वांट बीक्स, राइट। अब हम लोग कुछ बर्ड्स के एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। एव्स के तो देखिए नियोफ्रॉन है, ये आपका स्ट्रूथियो चला जाएगा। नाउ ऑस्ट्रिच होता है, नियोफ्रॉन इज वल्चर आई गेस। नाउ दिस इज सिटाकुला पैरट एंड दिस इज पैवो, दैट इज पिकॉक, ओके। नाउ फोरलिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, फोरलिम्स किस लिए मॉडिफाइड है विंग्स में। हाइंड लिम्स जनरली दे हैव स्केल्स एंड दे आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग और क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड्स एट द बेस ऑफ द टेल, तो ग्लैंड्स नहीं होते, सिर्फ बेस ऑफ द टेल पर ऑयल ग्लैंड्स होते हैं। एंडोस्केलेटन इज फुल्ली ऑसिफाइड बोनी एंड द लॉन्ग बोन्स, उनके पास हॉलो एयर कैविटीज होती है, न्यूमैटिक्स, ताकि ये इजीली क्या कर पाए, फ्लाई कर पाए, ओके। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स ऑफ द बर्ड्स, दे हैव द एडिशनल चेंबर, द क्रॉप एंड द गिजर्ड। अब क्रॉप जो होता है स्टूडेंट्स, क्रॉप जो होता है वो होता है स्टोरेज के लिए, और गिजर्ड जो होता है वो किसके लिए होता है, ग्राइंडिंग के लिए, चीज़ों को ग्राइंड करने के लिए, और क्रॉप होता है स्टोरेज के लिए। हार्ट इज कंप्लीटली 4 चेंबर्ड, अब आ जाएगा वार्म ब्लडेड, क्योंकि प्रोसेस एकदम बढ़िया कंप्लीट चल रहा है। दैट इज दे आर एबल टू मेंटेन द कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर। रेस्पिरेशन कैसे होता है, बाय लंग्स होता है इनका रेस्पिरेशन। एयर सैक आर कनेक्टेड टू लंग सप्लीमेंट रेस्पिरेशन। सेक्सेस सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, ओवीपैरस एंड डेवलपमेंट डायरेक्ट है, कोई भी लार्वल स्टेज नहीं आएगी। इसके एग्जांपल्स पढ़ लिए जाए, यस पढ़ लिए जाए इसके एग्जाम्पल।
देखो, क्रॉवस क्रो, कोलम्बा पिजन, सिटाकुलर पैरट, स्ट्रूथियो इज ऑस्ट्रिच, पावो पिकॉक, टेनोडाइट्स इट्स पेंगुइन एंड नियोफ्रॉनस वल्चर, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। तो अब हम लोग एव्स के बारे में पढ़ लें। तो एव्स क्या होता है? एव्स का मतलब होता है कि एव्स क्या इंक्लूड करेगा? एव्स क्या इंक्लूड करेगा? एव्स विल बी इंक्लूडिंग व्हाट? एव्स विल बी इंक्लूडिंग बर्ड्स, है ना? एव्स क्या इंक्लूड कर रहा होगा? बर्ड्स। अब इनकी बॉडी कवरिंग की बात कर ले तो बॉडी कैसे कवर्ड है? बॉडी इज कवर्ड थ्रू द फेदर्स, प्रेजेंस ऑफ फेदर्स। और इनके जो फेदर्स है बच्चों, इनके जो फेदर्स हैं वो किससे बने होते हैं? देखो, फेदर्स आर मेड फ्रॉम केरेटिन। फेदर किससे बने हैं? केरेटिन से बने हैं, केरेटिन से बने हैं इसके फेदर्स। ओके। स्किन कैसी होती है? ड्राई होती है एकदम, कोई भी ग्लैंड नहीं है। सिर्फ आपके पास यूरोपाइजल ग्लैंड, यानी कि जो कि बेस ऑफ द टेल पे प्रेजेंट है, वो है आपका ऑयल ग्लैंड, है ना? ये ऑयल ग्लैंड का दूसरा नाम, आई एम सॉरी, ऑयल ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है? ऑयल ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है? यूरोपाइजल ग्लैंड। दैट ग्लैंड हेल्प्स इन वाटर प्रूफिंग फेदर। ठीक है। किस चीज़ में हेल्प कर रहा है? अब देखो, बारिश है, अब ये तो नहीं, इनके पास तो अपना कुछ इतना शेल्टर वेल्टर की चीज़ों का इशूज़ रहता है, तो वाटर प्रूफिंग फेदर्स होते हैं, और इनका कारण क्या है? यूरोपाइजल या फिर ऑयल ग्लैंड्स ही है। अब देखो, नेक्स्ट चीज़ देख लें हम लोग कि फोरलिम्स किस में मॉडिफाइड है? फोरलिम्स है विंग्स में मॉडिफाइड, और हाइंड लिम्स किस लिए यूज़ होते हैं? फॉर वॉकिंग, स्विमिंग और क्लास्पिंग द ट्री ब्रांचेस, इसके लिए हाइंड लिम्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब एंडोस्केलेटन इज फुली ऑसिफाइड बोनी, बोन्स आर न्यूमैटिक, अभी मैंने बताया था कि फ्लाइंग फ्लाइट के लिए दे आर इंपॉर्टेंट। रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है? रेस्पिरेशन हो रहा है इनका लंग्स से हो रहा है ना? लंग्स किससे कनेक्टेड है? लंग्स आर कनेक्टेड टू द एयर सैक। ओके। एयर सैक्स डू नॉट टेक पार्ट इन रेस्पिरेशन। एक्चुअली एयर सैक बस वेट को रिड्यूस करता है, रिड्यूस वेट, और ये एक्चुअल उसमें पार्ट नहीं लेते, एक्चुअल रेस्पिरेशन में पार्ट नहीं लेते। ठीक है। अब हम हार्ट का पीछे चला गया क्या? ओके। हार्ट जो है वो कंप्लीटली फोर चेम्बर्ड है। हार्ट इज कंप्लीटली फोर चेम्बर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स। ब्लड इज वार्म ब्लडेड। कैसा है? वार्म ब्लडेड है, होम्योथर्म्स। ठीक है। अब बर्ड्स जो होती है ना, वो नाइट्रोजनस वेस्ट एज अ यूरिक एसिड मतलब रिमूव करती हैं, तो ये हैं यूरिकोटेलिक एनिमल्स। कैसे एनिमल्स है? यूरिको एक्सक्रीटरी में पता चलेगा, यूरिकोटेलिक एनिमल्स है। एक्सक्रीटरी में जिन्होंने पढ़ लिया उन लोगों को पता होगा ये चीज़। रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनका फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल। कैसे पता तुम लोगों को? मैम, क्योंकि टेरेस्ट्रियल है तो इंटरनल होगा। ये होते हैं ओवीपैरस, और एग्स जो उनके होते हैं ना वो लार्ज होते हैं, और योग बहुत होता है इनके एग्स में, और इनका डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। अब इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स पढ़ ले तो कोलंबा पिजन, यस, कॉर्वस क्रो, टेनोडाइट्स पेंगुइन्स, ट्रूथियो ऑस्ट्रिच, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। बर्ड्स आर द ओनली लिविंग वर्टिब्रेट्स विद द फेदर्स। ठीक है, याद रखेंगे। नाउ लेट्स मतलब नीट के क्विक पॉइंट्स जो हैं वो एव्स के, वो ये है कि फेदर्स बर्ड्स में है, फोर चेम्बर्ड हार्ट्स हैं, इनमें न्यूमैटिक बोन्स है, और ये यूरिकोटेलिक एक्सक्रीशन शो कर रहे हैं। नाउ लेट्स मूव टू क्लास मैमेलिया, द मोस्ट डाइवर्स वर्टिब्रेट ग्रुप। ओके। मैमेलिया की बात कर लें तो दे आर फाउंड इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स। दे मे बी फाउंड इन पोलर आइस कैप्स, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड डार्क केव्स। कहाँ पे भी पाए जाएंगे। सम ऑफ देम हैव अडैप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर। द मोस्ट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स इज द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, जिसको हम लोग नाम दिया मेमरी ग्लैंड्स होते हैं, बाय विच यंग वंस आर नरिश्ड। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेमरी ग्लैंड्स। जब लैक्टेशन का पीरियड आता है तब उस टाइम पे जो मिल्क प्रोड्यूस होता है वो बहुत अच्छी एंटी बॉडीज होती हैं उसके अंदर फॉर अ young one. Okay. They have two pairs of limbs adapted for walking, running, climbing, burrowing, swimming और flying. ठीक है। तो अब ये सब मैमल्स हैं। ये है ऑर्निथोरिंकस, प्लैटिपस। ये एक ऐसा मैमल है, एक्सेप्शन है, जो कि ओवीपैरस है, बाकी सब विविपैरस होते हैं। मैक्रोपस, कंगारू, टेरोपस और बेलेनोप्टेरा। ठीक है। द स्किन ऑफ द मैमल्स इज यूनिक इन पोजेसिंग हेयर, एक्सटर्नल ईयर्स और पिनास आर प्रेजेंट। ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन द जॉ। हार्ट इज फोर चेम्बर, दे आर होम्योथर्म्स। रेस्पिरेशन लंग से होती है, सेक्स सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। विविपैरस एक्सेप्शन के साथ ओवीपैरस है, ऑर्निथोरिंकस, प्लैटिपस बता चुकी हूँ। विविपैरस, मैक्रोपस, कंगारू, टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स, कैमलस कैमल, मकाका मंकी, रैटस रैट, कैनस डॉग, फेलिस कैट, एलिफस एलिफेंट, इक्वस हॉर्स, डेल्फिनस कॉमन डॉल्फिन, बेलेनोप्टेरा इज ब्लू व्हेल, पैंथरा टाइग्रस टाइग्रस, पैंथरा लियो लायन। ओके। यस। सो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमेलियाज की बात कर लेंगे हम लोग। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमेलिया की बात करेंगे तो हमारे पास क्या होता है कि इनकी जो बॉडी कवरिंग है, बॉडी इज कवर्ड विद, किससे किससे बॉडी कवर्ड है? बॉडी इज कवर्ड विद हेयर्स। बॉडी इज कवर्ड विद हेयर्स। स्किन में स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, ये तो तुम लोगों को पता है ना। स्किन में क्या होती है? लिख दूं? स्किन्स हैव स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स। ओके। सेबेशियस ग्लैंड्स। ठीक है। मैमल्स की स्किन में। ओके। मेमरी ग्लैंड्स इज प्रेजेंट इन फीमेल्स। ये तो पता ही है सब लोगों को कि मेमरी ग्लैंड्स फीमेल्स में प्रेजेंट है। दे आर यूज टू नरिश द यंग वंस। ओके। यस, विद मिल्क। प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड्स इज डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ मेमेलिया। तो मेमेलिया का जो डिफाइनिंग फीचर है वो मेमरी ग्लैंड्स का प्रेजेंस ही है। ठीक है। अब रेस्पिरेशन कहाँ से हो रही है? रेस्पिरेशन हो रही है लंग्स से हो रही है। ठीक है। प्रेजेंस डायफ्राम होता है, ये भी यूनिक टू मैमल्स है। हार्ट कैसा है? फोर चेम्बर्ड है। मैमल्स आर वार्म ब्लडेड, दैट इज होम्योथर्म्स। अब इनका जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो क्या है? यूरिया। तो मैमल्स कैसे होते हैं? मैमल्स होते हैं यूरियोटेलिक। कैसे होते हैं? एक मिनट, यूरियोटेलिक होते हैं। ठीक है। फर्टिलाइजेशन इनका इंटरनल होता है। विविपैरस हैं ये, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, विविपैरस हैं ये। ठीक है। डेवलपमेंट डायरेक्ट है, कोई लार्वल स्टेज नहीं आती। ओके। अब कुछ नीट के लिए इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। कुछ चीज़ें नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट मी टेल यू दोज थिंग्स। ओके। एक सेकेंड, जस्ट वेट।
देखो एक हम लोग बात करते हैं प्रोटोथेरिया की। प्रोटोथेरिया जो होते हैं वो एग लेइंग मैमल्स होते हैं। प्रोटोथेरिया क्या होते हैं? एग लेइंग, एक मिनट, प्रोटोथेरिया होते हैं एग लेइंग मैमल्स, जो मैमल्स एग ले करते हैं, जैसे ऑर्निथोरिंकस, ठीक है। मतलब इसको मैं ये बोल सकती हूँ कि ओवी पैरस, ओवी पैरस मैमल हो गया। इसका मैं एग्जांपल ऑलरेडी दे चुकी हूँ, इसका एग्जांपल मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, ऑर्निथोरिंकस, ठीक है, या प्लैटिपस था इसका एग्जांपल, और एक एग्जांपल और है, दैट इज एकिडना, एकिडना। ओके, प्रोटोथेरिया क्लियर है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट मेटाथेरिया, ठीक है। किसकी बात कर लेते हैं? मेटाथेरिया की बात कर लेते हैं। मेटाथेरिया, मेटाथेरिया होते हैं बच्चों पाउच्ड मैमल्स। क्या होते हैं? पाउच्ड मैमल्स होते हैं, आई एम सॉरी, पाउच्ड मैमल्स होते हैं। इसमें क्या होता है? इनमें होती है इनकम्प्लीट प्लेसेंटा। क्या होता है? इनकम्प्लीट प्लेसेंटा होती है, इनकम्प्लीट प्लेसेंटा होती है। इसका एग्जांपल हमारे पास एक है, दैट इज मैक्रोपस। मैक्रोपस यानी कि क्या नाम था? कंगारू। पाउच तो समझ जाओगे, मेटाथेरिया कंगारू। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, नेक्स्ट थिंग इज हमारे पास यूथेरियाज। लेट्स राइट यूथेरिया, यूथेरिया, यूथेरिया होते हैं, अब ये होते हैं तुम्हारे, एक सेकेंड से, ये होते हैं तुम्हारे प्लेसेंटल मैमल्स। क्या होते हैं? प्लेसेंटल मैमल्स। क्या होते हैं? प्लेसेंटल मैमल्स। मतलब यहाँ पे ट्रू प्लेसेंटा प्रेजेंट है, ठीक है। क्या प्रेजेंट है? ट्रू प्लेसेंटा। ये नीट के क्वेश्चंस में काम आएगा स्टूडेंट्स, ट्रू प्लेसेंटा प्रेजेंट है। इसके एग्जांपल्स लिख दो बच्चे। इसके एग्जांपल्स है आपके, जैसे कि होमोसेपियंस हो गए, ह्यूमंस हो गए, है ना, होमोसेपियंस हो गए। उसके बाद इसका एग्जांपल्स चला जाएगा एलिफेंट, एलिफेंट हो गया, और तुम्हारा डॉग हो गया। ये सब जिसमें प्लेसेंटा एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सब आपके होते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर नीड्स पर्सपेक्टिव। अब ये मार्क कर लेते हैं, इसमें से इंपॉर्टेंट जो है, इसमें से इंपॉर्टेंट है आप तो ओवीपैरस और निथोरिंकस, ठीक है। और आपका इंपॉर्टेंट है इसमें से, और इंपॉर्टेंट है वीवीपैरस का मैक्रोपस कंगारू इंपॉर्टेंट है, पैंथेरा लियो लायन इंपॉर्टेंट है, ब्लानोपेरा ब्लू वेल इंपॉर्टेंट है, और टेरोपस फ्लाइंग फिश, दीज आर इंपॉर्टेंट। बैट इज फ्लाइंग मैमल एंड इट इज नॉट अ बर्ड, ओके, क्लियर। So with this we have completed subphylum Vertebrata from NCERT, right. If this video helped you, then like, subscribe, share with the NEET aspirants. Keep revising NCERT and keep moving forward. Thank you.